آج ہم جس کہانی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ 800 سال پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک پرانے صحرا میں ہمیں ایک اسپیس شپ دکھایا جاتا ہے۔ اسپیس شپ کے اترنے کی وجہ سے صحرا میں ایک خوفناک طوفان آتا ہے اور آس پاس کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس کا ہار بھاگتے ہوئے زمین پر گر جاتا ہے۔ اس منظر کے بعد کہانی موجودہ وقت میں آتی ہے۔ 800 سال گزر چکے تھے جہاں اسپیس شپ اتری تھی۔ اس جگہ پر تحقیق ہو رہی تھی اور ایک لڑکا جس کا نام وی ہے اسے وہی ہار ملتا ہے جو لڑکی کے گلے سے گرا تھا۔ پروفیسر تفتیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہار بہت زیادہ پرانا ہے اور یہ شاید بہت زیادہ قیمتی بھی ہو۔ یہ جان کر خوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک شخص آتا ہے جس کا نام جون ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں یہاں ملا ہے وہ میری ملکیت ہے۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ تم کہاں سے ہو؟ یہ جگہ چین کی ہے اور جو کچھ بھی ہمیں یہاں ملے گا وہ چینی حکومت کا ہوگا۔ جون اس بات سے تنگ آ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وی اور اس کے پروفیسر کی ٹیم کئی سالوں سے یہاں پر تحقیق کر رہی ہے۔ تحقیق کے بعد انہوں نے معلوم کیا کہ صدیوں پہلے یہاں ایک شہر تھا جس کا نام لولان تھا۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں کچھ لکڑی کے ٹکڑے بھی پائے۔ جب انہوں نے ان کو جوڑا تو ایک لولان کا نقشہ بنا۔ اس نقشے کو دیکھ کر اور لڑکی کے ہار کو دیکھ کر پروفیسر نے ایک کہانی بنائی۔ زمین کے نیچے شہر کی حالت بتا رہی تھی کہ 800 سال پہلے وہاں قحط پڑا ہوگا اور یہ ہار اس وقت صرف راہب پہنتا تھا۔ ان کا راہب مذہبی پیشوا ایک لڑکی تھی اور اس کے پاس یہ ہار تھا۔ جب قحط آیا تو راہب مندر کی طرف بھاگتی ہے مگر پھر وہ طوفان میں گر کر مر جاتی ہے۔ منظر ماضی میں کٹ ہوتا ہے جہاں ہمیں وہی راہب نظر آتی ہے جس کے بارے میں وہ اور اس کی ٹیم بات کر رہے تھے۔ راہب کا نام یامان تھا جو طوفان سے بچنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ یہ لوگ مشکل سے مندر تک پہنچتے ہیں مگر چن کی حالت بہت خراب تھی۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چن لونان شہر کا بادشاہ تھا مگر اب اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور اسی دوران وہ یامان سے کہتا ہے کہ میرے بھائی سے دور رہنا، وہ اچھا آدمی نہیں۔ چن یہ کہہ کر مر جاتا ہے اور یامان غمگین ہو کر مندر کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ خدا سے دعا کر رہی تھی کہ خداوند اس شہر کو قحط سے بچا لے۔ جب وہ عبادت کر رہی تھی تو مندر کے دیے جل رہے تھے۔ اچانک مندر کے اندر سے ایک شیشے سے روشنی نکلی جیسے سورج ہو اور پھر اچانک وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ یامان نے سوچا کہ خدا اس شیشے کے ذریعے اسے کچھ کہنا چاہتا ہے، اسے کچھ سمجھانا چاہتا ہے، لیکن منظر پھر وہاں پر کٹ ہو جاتا ہے۔ ہم موجودہ وقت میں وی کو دیکھتے ہیں۔ وہ اور اس کے پروفیسر کی ٹیم لولان شہر سے تمام پرانی چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد واپس یونیورسٹی جا رہے تھے بغیر یہ جانے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے۔ یہاں دو افراد ان کی ٹرین میں چھپے ہوئے تھے جو دراصل ان کے دشمن جون کے ساتھی تھے۔ جون دراصل لولان شہر کی تمام چیزیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا کیونکہ لولان شہر 800 سال پہلے ختم ہو چکا تھا اور اگر آج کے وقت میں کوئی اسے تلاش کرتا ہے تو اسے حکومت کی طرف سے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ جون لولان شہر کی تمام چیزیں لینا چاہتا تھا اور حکومت سے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بہت برا اور لالچی قسم کا انسان تھا۔ آگے دکھایا جاتا ہے کہ جون کے آدمی وی کو گولی مارنے والے تھے کیونکہ وہ لولان شہر کی چیزوں کو بچا کر بھاگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وی کو مار ڈالے اچانک ٹرین میں تمام مسافر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں پستولیں تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل چین کی فوج تھی جو اپنے دونوں ساتھیوں کو پکڑ لیتے ہیں جو انہیں ٹرین سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا سارا سامان چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سوٹ کیس کو کھولتے ہیں وہی آئینہ دکھایا جاتا ہے جو ہم نے 800 سال پہلے یامان کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس آئینے کو دیکھ کر وہ ڈر گیا کیونکہ یہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے لیکن وہ حقیقت سے بے خبر تھا کہ یہ آئینہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہ یہ آئینہ اپنے گھر لے آیا۔ بہت کوشش کے باوجود آئینہ ٹھیک نہیں ہوا۔ منظر کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دوبارہ یامان دکھائی جاتی ہے جو خدا سے سب کچھ ٹھیک کرنے کی دعا کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ دعا کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آئینے میں عجیب سا جادو ہوتا ہے اور آئینہ خود کو ٹھیک کرنے لگتا ہے۔ موجودہ وقت میں وی کو آئینہ ٹھیک ہونا دکھتا ہے۔ اس آئینے سے بھی روشنی نکل رہی تھی۔ اچانک وی کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا مگر وہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی تو وہ ڈر جاتا ہے اور جب وہ آئینے کی طرف دیکھتا ہے تو اس نے یامان کو دیکھا۔ اس آئینے کے ذریعے یامان وی کو دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ یامان کو دیکھنے کے قابل تھا۔ واضح ہوا کہ اس آئینے نے دونوں طرف کی ٹائم لائنز کو جوڑ دیا تھا۔ یامان نے سوچا کہ وی خدا ہے تو وہ اس کی عبادت شروع کر دیتی ہے۔ وی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یامان کون ہے اور وہ لڑکی اس آئینے میں کیسے ہے۔ جواب تلاش کرنے کے لیے وہ یامان کے پس منظر کو دیکھنے لگا۔ اس نے یامان کے پس منظر میں کچھ تصاویر دیکھی۔ اس نے یہ تصاویر لولان شہر کے نقشے پر
देखी थी और अब वो वक्त ज़ाया किए बगैर समझ जाता है कि इस आईने ने दोनों टाइम लाइन्स को जोड़ दिया है और वो 800 साल पहले के लोलान शहर को देखने के काबिल है। वो यामान को बताता है कि वो खुदा नहीं है बल्कि एक आम आदमी है जो मुस्तकबिल से बात कर रहा है। वो यामान से दरख्वास्त करता है कि क्या आप मुझे अपने इर्द गिर्द दिखा सकती हो। यामान ऐसा करती है। इसके बाद वो यामान से बहुत सारे सवाल पूछता है लोलान शहर के बारे में और यामान इसके तमाम सवालों का जवाब देती है। वो चीजें जो लोग लोलान शहर के बारे में जानना चाहते थे वी यामान के जरिए वो इन्हें जानने के काबिल हुआ। ये सब जानकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इसे सारे सवालात के जवाबात मिल गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो यामान से कुछ और पूछता वो देखता है कि यामान की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। वो अपने फ्रिज से कुछ खाने के लिए निकालता है और इसे यामान को देता है। यामान भी अपना हाथ आईने में डालकर इसे पकड़ लेती है और खाने लगती है और ये बहुत मजेदार था। यामान ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया था। खाते खाते यामान वी से बातें करने लगती है और कुछ देर के बाद इनके दरमियान अच्छी समझबूझ बन गई। हमें दिखाया गया कि कुछ ही वक्त में वो यामान से हासिल करदा मालूमात से लोलान शहर पर एक किताब लिखता है। ऐसी बड़ी तहकीक करने पर उसको हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है। इस तकरीब में हम देखते हैं कि जॉन भी वहाँ पर मौजूद था। वो वी की कामयाबी पर हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वी ने इतनी जल्दी इतनी सच्चाइयाँ कैसे मालूम कर ली। वो समझ जाता है कि इसके पीछे कोई राज है। बहरहाल हम देखते हैं कि वी अपने घर वापस आता है और आईने के जरिए वो यामान से दोबारा राब्ता करता है। आज यामान बहुत उदास नजर आ रही थी। वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। यामान जवाब देती है कि यहाँ बहुत बुरी तबाही हुई है। हमारा बादशाह बहुत बुरा है। पहले यहाँ बादशाह चीन होता था। वो बहुत रहमदिल था, लेकिन फिर इसके भाई ने इस पर गद्दारी और मारकर इस हुकूमत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ये शहर तबाही की तरफ जा रहा है। यामान वी को स्पेसशिप के बारे में बताता है जो हमने कहानी के शुरू में जमीन पर उतरते हुए देखा था। यामान इसे कहता है कि एक उड़ता हुआ चीज के जरिए खुदा हमारे पास आया था जो बुरे बादशाह को मारना चाहा। इसे समझ आता है कि यामान एलियंस के बारे में बात कर रहा है। वो स्पेसशिप में यहाँ आए होंगे और बादशाह ने एलियंस को मार डाला। जब वो बात कर रहे होते हैं हम देखते हैं कि वी का साथी दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो इनकी तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। इससे पहले कि वो अंदर आए जान के लोग इसे अगवा कर लेते हैं और अब इस लड़की के जरिए जॉन वी का राज मालूम करता है कि इसने लोलान शहर पर किताब इतनी जल्दी कैसे लिखी। इसीलिए जॉन अपने 2 आदमियों को वी के घर भेजता है ताकि वो इस आईने को चुरा सके। यहाँ हम देखते हैं कि वो आईने के साथ सो रहा था। वो आईना अपने से दूर नहीं रखता क्योंकि वो यामान से मुहब्बत करने लगा था। यामान को देखे बगैर, इससे बात किए बगैर वो सो नहीं सकता था। इस आईने के जरिए यामान इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, एक बहुत अहम हिस्सा। हर रात वो यामान को एक नज़म सुनाया करता था। इसे सुने बगैर यामान अब सो नहीं सकती थी। यहाँ तक कि जब यामान सो जाती वो यामान को देखता रहता और अब इसके ख्वाबों में भी यामान आती थी। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन के 2 आदमी चोरी छुपे इसके घर में आ जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वी को इनके आने का पता चल जाता है और वो अपने कमरे की खिड़की से आईना लेकर भाग जाता है। वो एक तरफ छुप जाता है और आईने के जरिए यामान को अपनी हालत बताने की कोशिश करता है कि एक आदमी जिसका नाम जॉन है इसके पीछे है जो ये आईना छीनना चाहता है। इससे क्या वो कुछ कह पाता, जॉन इसके कंधे पर हाथ रखता है और इसके हाथ से आईना छीन लेता है। जॉन के आदमी वी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामान के मंदिर में भी लोलान के बुरे बादशाह के फौजियों ने यामान को पकड़ लिया और इनके जुदा होने की वजह से इस आईने का पोर्टल बंद हो गया। यामान अब बादशाह के पास ले जाई जाती है और बादशाह इससे इस आईने की सच्चाई के बारे में पूछता है। यामान कुछ नहीं कहती, लेकिन इसके फौजी कहते हैं कि ये एक जादू का आईना है जिसके जरिए हम जन्नत जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ यामान ही इस आईने को खोल सकती है क्योंकि वो एक जोगी है। बादशाह अब यामान को खुदा के मंदिर में ले जाता है। ये दरअसल खुदा का मंदिर नहीं बल्कि ये एक स्पेसशिप था जिन्होंने इन्होंने एलियंस को मारा था और इन्हें बांध दिया था। मौजूदा वक्त में हम जॉन को देखते हैं, वो वी को लेकर एलियन शिप में जा रहा था। वो एलियन स्पेसशिप में जाता है और वो वी से कहता है कि इस आईने का पोर्टल खोले, जबकि 800 साल पहले यही चीज यामान के साथ हो रही थी। बादशाह इस आईने का पोर्टल खोलने को कह रहा था। मुख्तलिफ औकात में यामान और वी एलियन स्पेसशिप पे चढ़ते हैं और जैसे ही वो आईना लेकर अपने मुंह के सामने करते हैं रोशनी का एक तूफान आना शुरू हो जाता है। एक पोर्टल खुलता है और दोनों टाइमलाइंस आपस में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से अब वी और यामान एक दूसरे को देखने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक दूसरे का सामना करते हैं। जैसे वो यामान को देखता है वो इसे गले लगा लेता है। यामान भी इसे देखकर जज्बाती हो जाती है क्योंकि यामान भी इससे मोहब्बत करने लगी थी। इसके बाद वो यामान को अपने आप से दूर करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। जॉन इन सब को देखकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर वो इस पर गोली चला देता है। गोली मारने से वो पोर्टल बंद हो जाता है। दूसरी तरफ 800 साल
पहले यमान को भी बादशाह की फौजियों ने पकड़ लिया था। वी को जिस कंधे पर गोली लगी थी और इसके साथ ही इसे बचा लेते हैं और जैसे ही पोर्टल बंद होता है बादशाह और इसके फौजी मुस्तकबिल की दुनिया में आ जाते हैं और आगे हमें दिखाया जाता है कि यमान 800 साल पहले थी और जैसे ही बादशाह यहाँ आता है पोर्टल बंद हो जाता है। बूढ़े बादशाह ने जॉन से पूछा कि क्या ये जन्नत है, तो जॉन कहता है कि हाँ ये जन्नत है और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। ये सुनकर बूढ़े बादशाह को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो खुद खुदा बनना चाहता था। वो अपने सिपाही का हथियार लेकर जॉन के एक आदमी को मार डालता है। यूं जॉन और बादशाह के दरमियान जंग छिड़ जाती है। बादशाह के फौजियों के पास पुराने हथियार थे जबकि जॉन के लोगों के पास मामूली पिस्तौल थे। इनके दरमियान जब जंग मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करती है, अचानक यहाँ रेत का तूफान आ जाता है और सब इस तूफान में फंस जाते हैं। खुशकिस्मती से वी और इसके साथी यहाँ से भाग जाते हैं, इस तूफान से बच जाते हैं। मंजिल के कट होने के बाद हमें कई साल बाद का मंजिल दिखाया जाता है। अब वी बुरा हो चुका था और दोबारा यहाँ आया है क्योंकि यहाँ तहकीक जारी थी। एक और टीम यहाँ तहकीक कर रही थी। उन्होंने यहाँ मजीद कदीम चीजें दरियाफ्त की थी। वो इनमें से एक चीज उठाकर देखता है, इस पर कदीम जुबान में कुछ लिखा हुआ था। यमान से बात करने के बाद वो कदीम जुबान जानता था, इसलिए वो जुबान को आसानी से पढ़ने में कामयाब हो जाता है। इस पत्थर पर वही नज़म लिखी हुई थी जो यमान को कदीम वक्तों में वी ने सुनाई थी, यमान ने लिखी थी। और जब वो ये देखता है तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके टुकड़े को देखते हैं। वी को ये एहसास होता है कि यमान इस दिन नहीं मरी जब पोर्टल बंद हुआ था, वो जिंदा थी और इसने अपनी बाकी जिंदगी वी को याद करते हुए गुजार दी। वो यमान को याद करते हुए मुस्कुराता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको हमारी मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।